Hello students, next lecture of chapter number 3 electrochemistry. In last lecture or up to last lecture we discussed about some of the sums on the basis of electrochemistry or the principle of electrochemical cell, and we discussed your first three illustrations. Now today we are moving towards your exercise sum, and the sum number is 3.4. Actually, there are two sums given in 3.4, but I will give you or I will calculate only one sum. The second sum is homework for you. Again, I repeat, I only going through with the calculation of part 1, the first question. The part 2 or second question will be homework for you. Okay, so first of all, let read the data. The data is given that calculate standard cell potential for the following chemical reaction at 298 Kelvin. They given you two chemical reaction, and after that two reaction they said that also calculate Gibbs free energy and Kc, that is your equilibrium constant. Okay, so as you have know that you have to find three values. So let's just first of all go back to your previous lecture, open your notebook, open your list of formula, and just see what are the formula for these three quantities, these three physical quantities. Okay, as you know that for this physical quantity the formula is inert cell or standard cell potential is equal to reduction potential of left hand side minus reduction potential of right hand side, or sorry, right hand minus left hand, or you can say reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. Now for that you have to use this equation to identify your anode and your cathode. So as you can see here, the oxidation state of chromium is 0 by applying rules of chapter number 8 redox reaction class 11. Here the charge is plus 3, that means number is plus 3. Here the number of cadmium is plus 2, that is your oxidation number. And here any element in a free state have number 0. So from this number you can calculate or you can determine or you can identify that chromium is going to increase in the oxidation number, so chromium will be oxidized, and cadmium is going to reduce in the reduction number of oxidation number, that means cadmium is going to reduce. And hence you can write now two formula for anode, because you know that on anode oxidation take place, and because chromium undergoes oxidation, to write the formula of chromium on anode, that 2 chromium solid oxidized into 2 chromium plus 3 ions. As you know that on a cathode electrode reduction take place, and since cadmium is undergoes reduction, write the formula of cadmium over cathode reduced to 3 cadmium solid. Now friends, you have value of anode and cathode, or you can say you have element over anode and cathode, but you don't have reduction potential value. Just check the data, they will not provide you the reduction potential value for these two. Don't worry, because this is just a NCERT textbook, so they don't provide that reduction potential value on this data. But whenever you are appearing in any exam, that is a state level exam or a country level exam, that means board exam or a NEET or JEE exam, they will give you the values of reduction potential. So don't worry, just write the value of reduction potential of chromium plus 3 to chromium, that is minus 0.74, and reduction potential of cadmium plus 2 to cadmium, that is minus 0.34. Guys, from these two value you can understand that
what is the difference? This is a lower value and this is a higher value. Maybe this will be 0.40. okay, so this is a higher value, so this is undergoes reduction and this is undergoes oxidation. Now from the electrode potential you can easily find your first answer. The first answer, that is your standard cell potential, that will be the reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. Just place the value from this formula, minus 0.40 minus 0.74, minus will be plus, minus 0.40 plus 0.74, and your answer will be plus 0.34 volt. देखो गाइस, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स द रिएक्शन इज फिजिबल। चलिए, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। चलो फॉर्मूला याद करो, सबको याद होगा। गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NF ऑफ E0 सेल नॉट। चलो, आपको हर एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। बताओ इस रिएक्शन के लिए आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमको कोई भी एक रिएक्शन उठानी पड़ेगी। चलिए, मैं यहाँ पे रिएक्शन लेता हूँ एनोड वाली। तो यहाँ पे मैं अगर 2 को निकाल दूँ, दोनों साइड मैंने 2 को कैंसिल किया, तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रोमियम सोलिड टू क्रोमियम +3 एक्वस। बताओ बेटा, अभी यहाँ पे देखो, अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे इसका चार्ज 0 है, लेकिन यहाँ पे इसका चार्ज +3 है। अगर आपको +3 को बैलेंस करना है तो आपको -3 चाहिए। मतलब कि हम क्या लिखेंगे? +3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। गाइस, आपको पता चल गया कि ये क्या है? आपका 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने इसको 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया तो आपका आंसर पहले क्या आएगा? 3 आएगा। एन के लिए क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। लेकिन देखो, अब अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 6। क्लियर? सो क्योंकि आपको रिएक्शन ये दिया हुआ है तो आपका आंसर अब 3 नहीं आएगा, आपका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। मैंने आपको पहले सिंपल बताया कि अगर क्रोमियम से क्रोमियम +3 होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 3। लेकिन क्योंकि 2 मोल ऑफ क्रोमियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू 2 मोल ऑफ क्रोमियम +3, तो अब आपका n क्या आएगा? 6 आएगा। चलो, बाकी सबकी वैल्यू आपको पता है, तो सबकी वैल्यू प्लेस करो। n = 6। f की वैल्यू आप ले सकते हो 6950, या फिर आप ले सकते हो 69487, और आपको ई सेल की वैल्यू पता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना आपका है? 0.34। क्लियर? चलिए, हर एक वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कीजिए। n की वैल्यू 6, f की वैल्यू हम लेते हैं 96500, और आपका इसोल नॉट की वैल्यू हम लेते हैं 0.34। गाइस, आपका जो भी आंसर आएगा आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे स्पेस रखता हूँ क्योंकि आप थोड़ा काम घर से खुद करो, ठीक है? चलो, आपकी दूसरी क्वांटिटी भी आ गई, दैट इज योर ΔG0। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी नंबर 3, एंड दैट इज योर कैलकुलेशन ऑफ Kc। चलो याद करो, Kc के लिए आपका कौन सा फॉर्मूला था? सबसे पहले याद करो, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस दिस 0.059/n log QC से स्टार्ट किया था। फिर हमने इसके प्लेस पे लिया था Kc, इसके प्लेस पे लिया था 0। इन दैट केस आपका आंसर क्या आता था? इसएल नॉट इज इक्वल टू 0.059n इज इक्वल टू log Kc आएगा। चलिए, log Kc को बनाओ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। अगर आपने इसको बनाया सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला तो हम इसको थोड़ा पहले लिख देते हैं, तो आपको वैल्यू मिल जाए 0.059/6। आपका ई सेल की वैल्यू कितनी आती है? 0.34, और आपको log Kc क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है? चलो, ये काम खुद से करना। आपका इसका कुछ आंसर आएगा तो हम लेंगे क्या? log Kc, और यहाँ पे हम लिखेंगे 0.34 डिवाइडेड बाय दिस। चलो गाइस, अब इसमें भी मैं आपको पूरा सम नहीं कराऊंगा,
अब आपको करना क्या है, जो आंसर यहाँ पे आएगा इससे मीन्स इसको इससे डिवाइड करना, इसका आपको कुछ आंसर मिलेगा, मान लीजिए कोई भी आंसर है बस, तो दैट विल बी योर लॉग KC। और इन दोनों का जब आप लोगे इसका और इसका आप लोगे डिवीज़न, जो आंसर यहाँ पे आएगा उसका आपको फाइंड क्या करना है गैस, एंटी लॉग। क्लियर। और जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ KC। मतलब कि इन शॉर्ट आपको यहाँ से सम खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट सम्स के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, 3.4 में आपने एक खुद से किया होगा ऐसा मेरा मानना है। 3.5 के बढ़ते हैं। 3.5 में भी फ्रेंड्स आपको 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं, मतलब कि आपको 4 केमिकल रिएक्शन दी हुई है, जिसमें से मैं आपको कोई 2 कराऊंगा, तो मैं उसमें से आपको फर्स्ट 1 कराऊंगा और सेकंड 1 जो थर्ड इक्वेशन है वो कराऊंगा। मतलब कि 4 में से मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 या केमिकल रिएक्शन 1 एंड केमिकल रिएक्शन 3 ये दोनों आपको मैं कराऊंगा। अब देखिए उसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है राइट नस्ट इक्वेशन, आपको नस्ट इक्वेशन लिखना है एंड कैलकुलेट EMF, आपको EMF कैलकुलेट करना है। गाइस ये EMF को आप लिख देना ई सेल, मतलब कि आपको नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ये बात याद रखना। क्या लिख देना, ई सेल, आपको ई सेल कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको एक सेल दिया हुआ है, इसका आपको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। देखो कई बार आपको ऐसे दिया गया होगा और आपको ये लिखा होगा, आपको वो बताएंगे नहीं कि कौन आपका एनोड है और कौन आपका कैथोड है, लेकिन आप फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन बता सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे, याद करो वो जो मैंने लिखाया था आपको लोन, LOAN, लेफ्ट हैंड ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव। तो आप इसके बेस पे लिख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम आपका बनेगा कौन सा, ये बनेगा आपका एनोड और ये बनेगा आपका कैथोड। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों फॉर्मूले को लिखते हैं। तो आप लिख सकते हो एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे लिखो मैग्नीशियम सॉलिड will gives magnesium plus 2 iron plus 2 इलेक्ट्रॉन। सेम वे कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, कैथोड पे यस कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन will gives कॉपर सॉलिड। बताओ इसके लिए अगर हम बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की, तो दैट विल बी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। चलो फ्रॉम द डेटा वैल्यू प्लेस कराओ। कॉपर आपका कैथोड है, दैट विल बी 0.34 माइनस 2.37 माइनस माइनस दैट विल बी प्लस, दैट मीन्स 0.34 प्लस 2.37, योर आंसर विल बी 0.71 वोल्ट। ये तो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, मुझे तो कैलकुलेट क्या करना है, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो लिखो नेक्स्ट यूजिंग और फ्रॉम नस्ट इक्वेशन क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 एंड यहाँ पे आपका आता था लॉग, और यहाँ पे हम क्या लिखते थे, हम यहाँ पे लिखते थे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ना लेना हो तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं कंसंट्रेशन टूवर्ड्स एनोड, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। चलो हर एक की वैल्यू प्लेस करो। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला इसमें आप लिख सकते हो, एनोड पे आपका कौन सा है, एनोड पे मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे लिखना कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2, और एनोड पे आपका सॉरी कैथोड पे आपका क्या है, कॉपर है, तो यहाँ पे लिखना कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देना लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ
कैथोड। क्लियर? चलो अब हर एक की वैल्यू प्लेस करो बेटा। ई सेल नॉट कितना है 2.71 माइनस 0.059। चलो एन की वैल्यू तो देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, 2 है, दैट विल बी 2। चलो कंसंट्रेशन कितनी दी आपके मैग्नीशियम की, आपकी दी हुई है। देखो अब मैं आपको पहले 2 स्टेप देता हूँ, पहले एक ही स्टेप में 2 स्टेप करूँगा, ठीक है। बाद में कंसंट्रेशन किसकी है, कॉपर +2 कितनी है 0.0001। चलो आपने ये स्टेप कर लिया। इसके बाद का स्टेप मैं इसमें लिखता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ साइंटिफिक नोटेशन में तो देखो 1 2 3, 3 पॉइंट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो ये आपका आएगा 10⁻³ 1 2 3 4, 4 पॉइंट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो वो आपका आएगा 10⁻⁻4। चलो अगर आप इन दोनों का डिवीज़न करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.71। इसका आपको अगर डिवीज़न आंसर मिलेगा 0.0295 और इनका आएगा log 10। आपको पता है log 10 की वैल्यू आती है 1, मतलब कि आपका क्या बचेगा 0.0295। अगर आप इन दोनों को करोगे सब्सट्रैक्ट तो आपका आंसर कुछ आएगा 2.68 वोल्ट। क्या आएगा 2.68 वोल्ट। चलो एक हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको कहा गया है 10 SN+2 एंड H+2 हाइड्रोजन। अगेन इसमें भी आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको लिखा हुआ है, आप इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो हमने जो लास्ट सम में किया वही करते हैं फिर से। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है आपका Sn है, यहाँ पे क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड का हाइड्रोजन, मतलब कि बनेगा एनोड, ये बनेगा कैथोड। तो चलो लिखो फॉर्मूला। एनोड पे क्या आएगा Sn सॉलिड ऑक्सीडाइज इंटू Sn+2 एक्वस प्लस क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए कैथोड पे क्या आएगा, तो देखो कैथोड पे अभी के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है H+, तो आप उसके फॉर्म में लिखोगे तो आपको देखने को मिलेगा H+ इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस इंटू 1/2 H2। लेकिन बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं 2 आए हैं, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो यहाँ पे आएगा 2H, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आएगा H2, यहाँ पे क्या आएगा H2 गैस। चलो हो गया। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आपको पता है कैथोड माइनस एनोड, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड पे कौन सा है आपका C हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका वॉल्ट कितना आता है 0, माइनस एनोड पे कौन आपका है Sn, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कितना -0.14, तो -0.14 माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी +0.14। गाइस आपको हर बार ये आंसर को पहले चेक करना है, अगर ये आंसर सही है तभी आप आगे जाना, अगर इसमें माइनस आता है मतलब कि आपने कहीं गलती की है। चलो एक काम हो गया आपका। अब आएगा क्या फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। चलो नस्ट का इक्वेशन लिखो। ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 एंड log concentration of एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। चलो हर एक की वैल्यू प्लेस करो। यहाँ पे कितना आएगा 0.14, यहाँ पे आएगा 0.059। चलो एन की वैल्यू कितनी आती है फ्रेंड्स, जो मैंने राउंड किया है, दैट इज योर 2। चलो यहाँ पे आएगा लॉग। अब देखो एनोड पे आपका कौन है, एनोड पे आपका है Sn+2, जिसकी कंसंट्रेशन आपको दी कितनी है 0.15, मतलब कि 0.015। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब गाइस यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दी हुई है H+ की, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 2H+ है। कितने हैं 2H+ है, मतलब कि पहले क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ होल स्क्वायर, क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ होल स्क्वायर
अब इसमें आप H प्लस की लिखोगे कंसंट्रेशन, वो आपको कितनी दी हुई है, तो वो आपको दी हुई है 0.020। कितनी दी हुई है 0.020। चलो फर्दर इसको हम आगे बढ़ाए तो 0.14 माइनस 0.0295। अब इसमें आप लिख सकते हो लॉग, चलो 1 2 दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻², और नीचे आएगा 1 2 दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। चलो अगर आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, अगर हम आगे बढ़े 0.14 0.0295 लॉग 5 इंटू 10⁻², 4/10⁻⁴। चलो दैट विल बी 1.25 एंड दिस विल बी 10/2। चलो मतलब कि आपका 0.14 माइनस 0.0295 लॉग 1.25 10⁻²। फर्दर इसको फिर आप ब्रैकेट को ओपन करना, इसका लॉग प्लस इसका लॉग निकालना, इन दोनों को फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना 0.0295 से, उसको सब्सट्रैक्ट करना 0.14 में से, तो आपका आई थिंक लास्ट आंसर आएगा 0.08 वोल्ट। कितना आएगा 0.08 वोल्ट। मैं आपके लिए आंसर फिर से ब्लैंक रखता हूँ, खुद से सॉल्व करना। थैंक यू।